Now we discuss about the thermodynamics, another very important chapter. Thermodynamics means it is the branch of physics in which we study about the transformation of heat energy into another form of energy and its vice versa. That is known as thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physics in which we study about the transformation of heat energy into another form of energy and its vice versa. That is known as thermodynamics. और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड इंडिकेटर डायग्राम मीन्स पीवी डायग्राम. तो थर्मल इक्विलिब्रियम, system is said to be in thermal equilibrium if macroscopic properties like temperature, pressure, volume remains constant throughout the process. That is, it is known as thermal equilibrium. What is said to be in thermal equilibrium if parameters like temperature, pressure, volume remains constant with respect to the time, known as thermal equilibrium. Clear? And zeroth law of thermodynamics based on the thermal equilibrium. तो जानो zeroth law of thermodynamics. There are three systems. These are the three systems A, B, C. And is non-conducting wall, and is conducting wall, and is non-conducting. If system B is in thermal equilibrium with A and system C in thermal equilibrium with A, B and C also be in thermal equilibrium. That is zeroth law of thermodynamics. If system B is in thermal equilibrium with A, system C in thermal equilibrium with A, B and C also be in thermal equilibrium. That is zeroth law of thermodynamics. Now, we discuss about the thermodynamic process. Thermodynamic process is said to be takes place if thermodynamic variables or parameters of the system changes with respect to the time. Thermodynamic process is said to be takes place if thermodynamical parameters or thermodynamic variables changes with respect to the time, like temperature, pressure, volume, heat. These are the thermodynamic variables. एग्जाम्पल तौर पे देखो आप, लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस. Isothermal process. Iso means constant, thermal means temperature. The process takes place at constant temperature, known as isothermal process. T constant. So delta T goes to 0. The process takes place at constant temperature,
known as isothermal process, T constant and delta T equals to 0. Second, isobaric process. Iso means constant, baric means pressure. The process takes place at constant pressure, known as isobaric process. P constant, delta P equals to 0. That is isobaric process. ठीक. Third, isochoric process. और आइसोवॉल्यूमिक भी बोलते हैं उसको. The process takes place at constant volume, known as isovolumic process or isochoric process. V constant, delta V equals to 0. Other one is adiabatic process. Adiabatic process. Process takes place at constant heat, no exchange of heat from system to surrounding and surrounding to system. Q constant. Or delta Q equals to 0. That is known as adiabatic process. ठीक. और एक आइडियल गैस इक्वेशन भी हुआ करता है. PV goes to nRT. PV goes to nRT. PV goes to nRT is the ideal gas equation. Now, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग वर्क डन ड्यूरिंग. पहले तो ये जानो आप कि पीवी डायग्राम क्या होते हैं. पहले ये जानो, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं और पीवी डायग्राम भी. It shows thermal expansion. What is thermal expansion? Because V2 greater than V1 and P1 greater than P2. वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब थर्मल एक्सपेंशन होगा. तो पीवी डायग्राम में ये चीज बताएगी थर्मल एक्सपेंशन. नाउ थर्मल कंप्रेशन. ये थर्मल कंप्रेशन है. इट शोज थर्मल कंप्रेशन. क्यों? प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है. ये थर्मल कंप्रेशन बताएगा. ये थर्मल एक्सपेंशन हो गया, थर्मल कंप्रेशन हो गया.
ठीक, यहां पर हम लोग साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे। साइन कन्वेंशंस, work done by the system, work done by the system we take positive sign। और वर्क डन सिस्टम कब करेगा? जब वर्क डन सिस्टम करेगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। जब भी सिस्टम वर्क डन करेगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, कंप्रेशन होगा, वी टेक नेगेटिव साइन। क्लियर? एंड heat gain by the system positive and heat loss by the system is negative. So these are the sign conventions। फिर से जान लो, work done by the system we take positive sign, और जब भी सिस्टम वर्क डन करेगा थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन। कंप्रेशन कब होगा? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम या कंप्रेशन में हम लोग नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव। क्लियर? तो देखो इसको, व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है ये लेके चलते हैं। तो इंपॉर्टेंस के लिए पहले जानो कि वर्क डन ड्यूरिंग thermodynamic process। वर्क डन ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा और कुछ नहीं। A is the initial position, pressure P1, volume V1. B is the final position, pressure P2, volume V2. And this cylinder filled with ideal gases and fitted with frictionless piston, movable piston. At any instant, that's at the C point, pressure is P and volume V. Now, it is delta X. During thermal expansion, piston moves from C to D by delta X. Pressure almost remains same while volume increased by very small amount, V plus delta V. प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहा और वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा वी से। तो वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, work done from C to D, very small work done required, dW, F into delta X, PA delta X, force means pressure into area, और dW equals to PdV, और टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कर लो, V1 से V2 PdV, तो ये वर्क डन आ गया। अब कंप्रेशन होता तो नेगेटिव हो जाता बस, और कुछ नहीं। अब जरा हम पीवी इंडिकेटर डायग्राम से देखते हैं क्या आएगा। ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? P1 V1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? P2 V2। C is the point, pressure P, volume V,
D very close to C. अब ये हो जाएगा V प्लस डेल्टा V, यानी इतना हो गया डेल्टा V, और प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहा। ठीक, इसी को लेके हमने एक डायग्राम बना दिया और थर्मल एक्सपेंशन तो हो ही गया, एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इधर थर्मल एक्सपेंशन। ना एरिया निकाल रहे हम लोग स्ट्रिप का। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या मिलेगा? इट इज P इंटू डेल्टा V। ये P हो गया, ये डेल्टा V हो गया, और P डेल्टा V किसके बराबर होता है? इट इज वर्क डन के। So what is the conclusion? The conclusion is area under PV graph is the measurement of work done. Area under PV graph is the measurement of work done. ठीक, और जानो। वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस दिखाते हैं, जहां से स्टार्ट हो वहीं एंड होती है। अगर कोई साइकिल, दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस जहां से स्टार्ट हो वहीं एंड हो रही है, दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस होगी, और हमें वर्क डन निकालना है WABA। किसका बराबर होगा? WAXB प्लस WBYA। ठीक, और आपको पता है एरिया अंडर PV ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। तो WAXB क्या होगा? एरिया ऑफ AXBBA, ये सारा एरिया AXBBA। अब लेके चल रहे हैं WBYA। अब तो ये तो था एक्सपेंशन, ये कैसा है? कंप्रेशन, तो नेगेटिव आएगा, माइनस एरिया ऑफ AYBBA। टोटल वर्क डन, दोनों की वैल्यू लगा दो। एरिया ऑफ AXBBA माइनस एरिया ऑफ ABBA, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AXBYA, यानी ये सिर्फ एरिया काउंट होगा। So what is the conclusion? The conclusion is work done during cyclic process is equals to area enclosed by the cyclic process. Work done during cyclic process is equals to area enclosed by the cyclic process. Cyclic process में जो एरिया आएगा enclosed हुआ है, it is equals to work done। ये वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ AXBYA ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया आ रहा है उसके वर्क डन के बराबर हो रहा है। दैट इज द कंक्लूजन। कुछ न्यूमेरिकल देखो इनके ऊपर, तब और क्लियर हो जाएगा आपको।
The PV diagram for a cyclic process in a triangle ABC shown in figure. एक डायग्राम गिवन है. वॉल्यूम लीटर्स में और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. ये डायग्राम गिवन है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर 4 1 2 4 and 2 1. 4 1 2 4 and 2 1. These are the coordinates of ABC. Calculate the work done during the process A to B and B to C and C to A. Also calculate the work done in the complete cycle. तो पहला लेके चल रहे हैं A to B. A to B में वर्क डन लेके चल रहे हैं. A to B. WA to B का मतलब है ये सारा एरिया आ जाएगा. ये एक ट्रेपेजियम बन गया. हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स तो ये हो जाएगा 4 + 2 इंटू हाइट 2 नहीं बल्कि 3. ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया. 4 - 1 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ये हो जाएगा 9. ठीक है, ये 9 आ गया. लेकिन हमें यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स को. जो 3 दिया हुआ था ना, -3 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ये. ठीक है, 9 × 10⁻³ जूल, क्योंकि एक ही यूनिट बनाना था. ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में, इसको भी मीटर क्यूब में लेके आना था. तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया. ये 9 × 10⁻³ ये पहला आंसर आ गया. अब सेकंड पार्ट है वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस B to C. अब B to C अगर लेके चले तो ये एरिया आएगा और माइनस आएगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है. -2 × 3 × 10⁻³ -3 -6 × 10⁻³ जूल. ये आ गया. अब WA to C ये 0 हो जाएगा. क्यों? चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा? 0. यहां पे 1 है, यहां पर भी 1 है, तो डेल्टा V क्या रहा? 0. जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है तो वर्क डन नहीं होगा. 0 हो गया. और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए, WABC सारा ऐड कर दो तो 9 × 10⁻³ -3 -6 × 10⁻³ प्लस 0 3 × 10⁻³ जूल. ये आ गया. ठीक, एक और क्वेश्चन देखो.
एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग। One mole of an ideal gas undergoes a cyclic change ABCD, where the PV coordinates are A 51, B 53, C 23, and D 21. Pressure is in atmosphere and volume in liters. Calculate work done along AB, BC, CD, DA, and also calculate the total work done. Take 1 atmosphere equals to 1.01 10 to the power 5 पास्कल। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, A B C D इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पीवी के 51, 53, 23, 21। प्रेशर और ये वॉल्यूम है। प्रेशर है एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है इन लीटर्स। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। A 51, ये A हो गया 51, B 53, ये B हो गया, C 23, ये C हो गया और ये D हो गया। क्लियर? ये बन गया। हमें निकालना है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी, एरिया अंडर ए बी। ये हो जाएगा 5 इंटू 1.01 10 to the power 5, क्योंकि हमें सेम यूनिट में लेके आना है, इंटू 3 - 1 10 to the power -3। W A to B मिला 1010 जूल। W A to B आ गया ना। W B to C 0, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो वर्क डन 0 हो गया। W C to D, अभी देखो कंप्रेशन हो रहा है तो माइनस तो पहले लगा दो। अब इसका एरिया निकालो, ये वाला एरिया कितना होगा 2 1.01 10 to the power 5 इंटू 2 -3 404 जूल। ठीक। और अब WD2A 0, क्योंकि कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है। और टोटल निकालना है तो चाहे इसका ही एरिया निकाल दो या सारा ऐड कर दो। (1010 माइनस 4040 404 606 जूल आ गया। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से। क्लियर?